course of Google Forms. In this video, I'll teach you about few more things which would be helpful for you in the future also, and maybe depends on your profession that you can utilize the skills to your for your work. So now let's begin with the what skills that I want to tell you and what I want to discuss with you this. So in this video, today's topic would be about like how to analyze responses in Google Forms, how to set up auto response in Google Forms, creating quizzes and result generation and finish. It means like in this video, what we are exactly learning like जब भी हम कोई data डालते हैं, जब भी हमारा form रहता है, what are the form that we have created. So auto response जो बनता है, हम लोग उसको spreadsheet पे कैसे लेते हैं. इवन लाइक जब भी हम किसी का रिस्पॉन्स लेते तो हम उसको एक एक्नॉलेजमेंट कैसे दे थ्रू आउट द ईमेल. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट हम उसके बाद ये सीखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, उसको हम एक मार्क्स पर्टिकुलर जो भी आपका मान लो एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर कुछ भी टेस्ट है जो एमसीक्यू बेस्ड है, then you can give the 5 or 10 depends on your interest. So you can give the marks to particular questions, and along with that you can put on the कि कौन सा इसमें का options जो right है वो आप आंसर टिक मार करके you can this acknowledge them also कि ये question का आंसर जो है वो correct है या नहीं है. So let's begin one by one how you can do this. So let's begin first with this form that I have already discussed earlier in few days back and previous videos. तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि रिस्पॉन्सेस यानी कि क्या होता है कि अभी मैंने सब फॉर्म भर दिया. अभी मान लो कि अगर रिस्पॉन्स किसी का आ गया, जस्ट मैंने 5 जन को भेजा है फॉर्म और उनका रिस्पॉन्स मिल जाएगा. सो आई कैन चेक इट ओवर हियर डायरेक्टली कि ये लोग का रिस्पॉन्स क्या है. बट व्हाट इन केस ऑफ अगर 1000 जन का डायरेक्टली डेटा आ रहा है, देन व्हाट यू कैन डू. सो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा है लिंक टू शीट्स, तो यहाँ पे आप लिंक कर दो. नाउ व्हाट इज आस्किंग क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट. आई वुड लव टू प्रेफर द न्यू बिकॉज ऑफ हमारा डेटा हम नए शीट में डालेंगे तो एक्सेस और हम डेटा सर्च करने में बहुत आसानी हो डायरेक्टली. सो दिस इज द शीट has already been created based upon the what columns that I have asked in the questions. यहाँ पे आपका सब कुछ जो भी रिस्पॉन्स हम जो भी जिसको भी फॉर्म भेजा हुआ है, that person can directly send those responses and automatically this system Google Forms वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देगा. Now coming to this form again, I'm going to do one thing that let me share this responses, then you will understand how it exactly it's work. So publish मैंने कर दिया directly. I'm just sending this with the management. यहाँ पे you can use the access to the person whom we want to share. तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया directly, and you can give him editor respond or whatever you want to give it. Notify people, you can do that also. Okay, so respond now. Share now. अभी ये फॉर्म शेयर उनके साथ हो जाएगा, बट पहले क्या पूछा उसने कि पहले पब्लिश करना है कि नहीं, because without publish you cannot do this. So first publish and notify. So yes, okay, notify this responder, fine. Publish कर दो directly. Now you will get a shortened URL also. You can copy this and directly you can paste it to the source where again I mean किसी और को भी share करना, WhatsApp पे करना है, you can share this link directly to the on WhatsApp or else on email also, depends on the source, and the person can immediately send the feedback. So if I want to go again with that one, so let me check that whether I have received the email or not. So here Gmail. Hold a minute. Okay. Now let me move this one. Okay. Now can you see this? 1940. It means it's 1941. So यहाँ पे मुझे फॉर्म आ चुका है already. I can fill out this. So I'm just putting the randomly कि यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको रेफर करना है सब कुछ मेरे पास आ गया. एंड मैं नेम डाल देता हूँ जो भी है, वॉट इज ईमेल एड्रेस @gmail.com. ओके सॉरी, व्हाट इज योर एड्रेस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे नेक्स्ट. नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज इट विष्णु गुप्ता totally and both. Okay, what is the name of Chanakya? Okay, so just putting randomly, choose name of Vishnu Gupta
Okay, I just selected one. Next, for जो भी है कर देता हूँ. Okay, जो भी ठीक है ना. गुड. ठीक है ना. सबमिट. अब आपको रिस्पॉन्स चेक करना होगा कि एग्जैक्टली वहां पे रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं. चलो चेक कर. यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ. देखो यहाँ पे अपने आप रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हो गया है, यानी कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली काम कर रहा है. अलॉन्ग विद दैट हमें जो डेटा मिल रहा है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. नाउ एडिशनल समथिंग्स दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू कि अभी आप ये सीख गए कि देखो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ गया. एक रिस्पॉन्स ये बहुत इजी है कि हम चेक कर सकते हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ डेटा जब आता है अपने पास तो मैनुअली चेक करना बहुत इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट बोल सकता हूँ डायरेक्टली में. तो यहाँ पे नाउ आई गो विथ सम एडिशनल थिंग्स कि अब मैंने क्या सोचा कि डायरेक्टली कि जब भी ये फॉर्म अपने पास आए ना तो पहले वो अपना ईमेल आईडी बोले, वो रिकॉर्ड हो, ताकि अपने पास एक डायरेक्टली फॉर्मेट बने एक ईमेल आईडी का, ताकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो हम डायरेक्टली ईमेल के अकॉर्डिंग उसको सेंड कर सकते हैं. ये एक मार्केटिंग हो गया. बट व्हाट आई एम वांट टू से दैट इफ रिस्पॉन्सेज के बारे में अगर बात करो तो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस. मैं यहाँ पे करता हूँ वेरीफाइड. सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ द रिस्पॉन्स, यानी कि उनको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है थ्रू आउट द ईमेल. यानी कि आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि उसने एक फॉर्म भरा तो उसके ईमेल के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन जाएगा कि यस आपने सक्सेसफुली ये फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ऐसा उसको नोटिफिकेशन जाएगा. सो डिपेंड्स कि कौन सा चाहिए. द व्हेन रिक्वेस्टेड तभी वो भेजेगा. और मैं यहाँ पे ऑलवेज होता हूँ ऑफकोर्स, तो ऑलवेज हमेशा ही जाएगा. अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, यस अगर मान लो कि आपका बंदा जिसने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है और मान लो उसने फिल किया, जैसे फिलअप करने के बाद उसने सबमिट भी कर दिया, बट आफ्टर 24 आवर्स एक दिन के बाद उसको मालूम पड़ा कि मैंने गलती की, तो यू कैन डू एडिट. बट यहाँ से सेपरेटली उसको पहले मुझे परमिशन देना पड़ेगा, देन ओनली ही इज एलिजिबल टू डू दिस. तो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ. वो डिपेंड करता है आपको देना है दो नहीं देना है मत दो, डिपेंड्स ऑन यू. So this is a summary that how you can do this. Now I'll come to the matter of this, make this a quiz. But for that, I would love to discuss some things about this, what how you can do this. The thing is like quiz that you can apply it only for multiple choice question और के लिए भी होता है, but I will not recommend you because अगर आप एक short note के बारे में बात करोगे तो अगर मान लो थोड़ा सा words का इधर उधर हो गया तो मे बी वो बोलेगा no it's wrong. So usually quiz होता है वो multiple choice of question के लिए ही ये होता है applicable होता है. But I'll go with the another one जो मैंने अलग एक फॉर्म अलग से बनाया था. Let me delete this question. Now मैंने अलग से फॉर्म बनाया, उसमें आपको मैं बता दूं कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, कि वहां पे क्विज का फॉर्मेट कैसे डाला जाता है. कमिंग टू दिस वीडियो नाउ, यहाँ पे मैं जस्ट डालता हूँ डेमो क्विज. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे एनेबल कर दो डायरेक्टली, और जो भी यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे इसने डाला हुआ ना उसमें कुछ छेड़छाड़ मत करना, जो है वही रहने दो. तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ परिचित हूँ. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अबाउट लाइक डाल देता हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट. देन उसके बाद यहाँ पे आप और भी ऑप्शंस यहाँ पे बोल्ड में रखना है, जैसे भी रखना आप कर सकते हो. क्वेश्चन ऐड करते हैं यहाँ पे, फिर मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे आप क्वेश्चन डालिए कि यस कि मेरा यहाँ पे व्हाट इज द रियल नेम ऑफ चाणक्य. ठीक है. मैं यहाँ पे ऑप्शन डालता हूँ विष्णु गुप्ता. यहाँ पे डालो सरदार. ठीक है. और एक है एंड कौटिल्य. ओके 1 and 3. So this is the question through which you can do some like now what you have to do here, it is like you have to give some answers about it, like to कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, you can put it over there, right? So for that first आपके ऊपर डिपेंड करना है, करो नहीं करना मत करो. ना आंसर की के ऊपर जाओ, यहाँ पे पॉइंट्स डालना है यहाँ पे कि कितने मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस देना है डायरेक्टली. यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाल दिया. अब मुझे दिखाना है उनको कि ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है.
तो मैंने ऐड आंसर फीडबैक डाला डायरेक्टली मैंने। तो पहले काम करेंगे कि यहाँ पे 5 मिनट डाला, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा 1 and 3। ये मैंने एक राइट करके रख दिया डायरेक्टली, 5 मार्क दिए और मैंने ये मार्किंग कर दी, यानी कि इसको सिस्टम को समझ गया डायरेक्टली, गूगल को समझा कि इसका आंसर 1 और 3 है। ये मैंने फॉर्म में सेट कर दिया। अभी यहाँ पे बोलता मैं ऐड आंसर फीडबैक। यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर के लिए आप फीडबैक क्या दोगे और करेक्ट आंसर के लिए फीडबैक क्या दोगे। इनकरेक्ट के लिए आप डाल दो डायरेक्टली दिस इज इन दिस इज इनकरेक्ट इन आंसर, सिंपल। नाउ अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज कर सकते हैं अगर करना हो तो। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है लिंक और एक है यूट्यूब का वीडियोस। अगर मान लो कि आपका वेबसाइट है और वेबसाइट पे ये चीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि इसका आंसर आप वहां से रेफर कर सकते हो अगर आप इनकरेक्ट हो तो आप लिंक डालिए यहाँ पे, लिंक टू एंड टेक्स्ट टू डिस्प्ले। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिंक डाल दीजिए डायरेक्टली कि बाबा सो एंड सो, यानी कि मान लो कि मेरे वेबसाइट का नाम है amazon.com, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे amazon.com का वेबसाइट डाल दो, ये ऑप्शनल टेक्स्ट टू डिस्प्ले और सेव कर देना डायरेक्टली। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको दिखा देता, चलो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। यूट्यूब पे चला जाता हूँ या फिर एक वेबसाइट जाता हूँ, वेबसाइट सॉरी अमेजोन, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, मैंने कॉपी कर दी, यहाँ पे चला गया, डाल दी, यहाँ पे मैंने डाला है अमेजोन। अब ये हो गया तुम्हारा ऐड, हो गया। सो जब भी मान लो कि अगर आंसर अगर इनकरेक्ट है, देन यू दिस पर्सन, आई मीन जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो अपने आप आपको पूरे करेगा डायरेक्टली कि दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए फीडबैक यहाँ से मिलेगा। मान लीजिए कि मुझे वेबसाइट नहीं, मेरे पास वीडियो है यूट्यूब का, नो इश्यू, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप वीडियो का लिंक सर्च कीजिए, या फिर अगर आपको URL है पेस्ट करो डायरेक्टली, या फिर सर्च करो डायरेक्टली कि अमेजॉन मैं जस्ट एग्जाम्पल के डाल रहा हूँ मैं। नाउ मेरे पास ये कुछ वीडियोस आ गए डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे ये उठा के डायरेक्टली इंसर्ट कर दो डायरेक्टली। देखो यहाँ पे इसका सीधा लिंक आ गया, तो बंदा जो भी है वो इस लिंक को रेफर करेगा एंड देन ही विल अंडरस्टैंड कि बाबा इसका आंसर क्या है। नाउ अभी ये हो गया इनकरेक्ट के लिए। नाउ करेक्ट आंसर्स के लिए दिस इज द राइट आंसर, ये मैंने डाला नोट। यहाँ पे सेम प्रोसेस करो। कभी बार क्या होता है कि आपको आंसर्स पता है बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर आते हैं, इफ यू वांट to understand the deep part of this, then you can refer these video। यहाँ पे लिंक डालो या फिर वीडियो डाला, जो आपकी मर्जी है आप डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेव कर दीजिए डायरेक्टली, सेव कर दिया डायरेक्टली, आपका फॉर्म तैयार। यहाँ पे पब्लिश कर देना, मैंने पब्लिश ऑलरेडी कर चुका था, बट अभी मुझे करना है कि मान लीजिए कि मैंने पब्लिश कर दिया, गलती से मैंने किसी को एक्सेस दे दिया। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं उसको जो फॉर्म भेजा हूँ उसका एक्सेस हटा दूं। अब मैं जाता मैनेजमेंट, मैंने जिसको भी दिया था, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब मैंने इसको हटाना है, तो मैं इसको रिमूव एक्सेस कर सकता हूँ। मान लीजिए इसको ट्रांसफर करना है, ओनरशिप कर सकता हूँ, एडिटर करना है कर सकता हूँ। मैं इसको फिलहाल रिमूव करता डायरेक्टली, तो इसको भी रिमूव, यानी कि उसके पास फॉर्म गायब ही रहेगा तो भी वो एक्सेस नहीं ले सकता। मैंने यहाँ पे उसके साथ शेयर की, तो सेव, यस, डायरेक्टली यू कैन click on the save button and then you can share it. This is the very easiest process of this one, and you can copy responder link also. Here option you can see, and along with that you can go ahead for your further work. I hope you guys doing well now. Once again I'm asking this question because of now this is the end of this course, and I hope you have enjoyed this, and whatever the questions that you have you can ask me in the comment section of this videos. Stay tuned with me and we'll meet again into the next videos which would be based on other courses. Thank you so much for attending this video.
It means a lot.